again to my YouTube channel. My name is Khyati Jain and I'm your friend as well as your mentor. You can ask me any doubt. And in our earlier class, we were studying about the physical divisions of India. And in that, we saw about the Punjab plains. That means we were talking about the Indo-Gangetic plains. See, you can see here the green part, it is the Indo-Gangetic plain, and in this we were talking about how the Ganges plain merges with the Brahmaputra plain. Okay, हम ये बात कर रहे थे and we saw that the Indo-Gangetic plains has been divided into three parts. The first one, here comes the Punjab plains. Then second one is the Ganga plain or the Ganges plain, and this one is the Brahmaputra plain. Okay, and here are few more points. Now we'll see about the Brahmaputra. See, it also rises beyond the Himalayas and it crosses Tibet and then continues to the northeastern part. मतलब देखो Himalayas, it rises beyond the Himalayas, ठीक है, and then it flows through Tibet, ये वाला part से, then again it enters to India and it flows to the northeastern part of India. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से ये फ्लो होती है फिर से. And if we talk more about the Indo-Gangetic plains, how these are relevant, like we are talking mainly about that how the geographical features are relevant with the history or how they are impacting the history of a particular country. So how the Indo-Gangetic plains are affecting or impacting or molding the history of a region. See, like जो Indo-Gangetic plains है, they are developed as the in the rise of the urban center, you can say. मतलब यहाँ पे बहुत सारी cities established हुई. When we'll study more about the history, when we'll see more about the dynasties in ancient history as well as medieval, then in modern, so you would come to know that what was the impact of Indo-Gangetic plains mainly on the history. Such as if we talk about Patliputra, so there were many kingdoms which was established in Patliputra. Okay, they fought for that particular place. Then say about Delhi also. So many battles have been fought to capture Delhi or to rule over Delhi. So likewise, we can say that Indo-Gangetic plains contributed to the rise of the great urban centers, you can say. Particularly that urban centers were located on the banks of rivers, or you can say on the confluence of the rivers. Okay, here it is written that Indo-Gangetic plains has contributed to the rise of urban centers and particularly on the river banks or at the confluence of rivers. So that is what I have explained you right now कि जो Indo-Gangetic plains थे ना, they contributed to the rise of अर्बन सेंटर्स. मतलब सिटीज़ का फॉर्मेशन हम देखते हैं जब हम IVC, आई मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, तो वी सी दैट जो सोसाइटी थी या जो सिविलाइजेशन थी वो मेनली इस्टेब्लिश थी एक रिवर के किनारे पे, विच वॉज इंडस रिवर. ठीक है, that's why we have named it as Indus Valley Civilization. So that is was the same scenario has been as you can see here is like जो हड़प्पा कल्चर था वो इंडस के साइड किनारे पे एस्टैब्लिश हुआ. वैसे ही देयर वर फ्यू गेंजेटिक cities which were located in the Indo-Gangetic plains such as the Banaras, then Allahabad, Agra, Delhi, Patliputra, which we will be studying in the upcoming chapters of such as Vedic civilization. We would study about the Vedic culture. Then also you will see कि बहुत सारी ऐसी cities हैं such as Banaras, Allahabad वगैरह which are a part of Indo-Gangetic plains, and then you will see कि क्या impact था उन सारी places का history पर. Okay, so that's what is the relevance of these places on the history. Such as see here, the city of Patliputra, which is situated at the confluence of Son and river Ganges. ठीक है, सोन एंड गंगा नदी के कॉन्फ्लुएंस पे प्रेजेंट है पाटलिपुत्रा. एंड ये कैपिटल था बहुत सारे किंगडम का सच एज शुंग, मौर्य, गुप्ता. ये सारे किंगडम्स जो है इसी पर्टिकुलर प्लेस पर एस्टैब्लिश हुए थे. तो दिस इज हाउ यू कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ द जोग्राफिकल फीचर्स ऑन द हिस्ट्री. सो these were few points regarding the Indo-Gangetic plains, and few more I'm going to explain you right now. See,
the most important city on the western side of the Gangetic Plain is Delhi. As I said कि बहुत सारी लड़ाई हुई है दिल्ली को कैप्चर करने के लिए, such as we can see this is battles have been fought in the history, such as the कुरुक्षेत्र, then तराइन, then पानीपत, ये सारे दिल्ली के नियर बाय हुई है या फिर दिल्ली के करीब ही हुई है. So these are few important battles which are fought near by Delhi. अब आपको पता होगा पानीपत की बैटल्स के बारे में या फिर तराइन के बैटल के बारे में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने पहले तो मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, बट लास्ट में वो खुद हार गया उनसे, ठीक है. एंड देन कुरुक्षेत्र के बारे में यू माइट नो. देन उसके अलावा इफ यू टॉक अकॉर्डिंग टू द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस रिवर्स, या फिर इंडो गेंजेटिक में जो 3 मेन रिवर्स बह रही है उनके बारे में अगर हम ट्रेड के रिलेशन में बात करें, सो दे हैव सर्व्ड एज कम्युनिकेशन या फिर कॉमर्स के तौर पर या कॉमर्स के बेसिस पे. सच एज पहले लैंड रूट होना, मतलब it was a difficult task to have a land route. So mainly people used to travel via river or via sea. As you know, Vasco da Gama came through a sea route, ठीक है, and then he entered India. ऐसे ही और भी सारे लोग आए जो via sea route आए. वैसे ही in earlier lesson we saw about Himalayas कि यहाँ पे कुछ passes located है, so the invaders came through those passes. वैसे ही इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक रीजन, तो ये जो रीजन है यहाँ की रिवर्स जो हैं, दिस सर्व्ड एज द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, ठीक है. मतलब कॉमर्स को फ्लरिश करने के लिए, कम्युनिकेशन फ्लरिश करने के लिए. अब कम्युनिकेशन कैसे, सी जो बहुत सारे किंगडम्स के लोग आए या फिर बहुत सारे इन्वेडर्स आए वाया दिस रिवर्स, अब वो लोग आके यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गए, या फिर कह सकते हैं वो यहाँ आए, दे कम्युनिकेटेड, एंड इस तरह से bilateral communication we can say started, or they established over this particular place, and then they interacted with the culture of this particular place, they mingled with us, then उन लोग का culture उन लोग ने flourish किया. तो ऐसे ही trade and communication as well as commerce के लिए आप categorize कर सकते हो इस particular region को, ठीक है. And now next we will talk about the southern peninsula. अब southern peninsula जो है ना, it is composed of the Vindhyas mountains, sorry, it is composed of mainly volcanic rocks, ठीक है. volcanic rocks से ये compose हुआ है, and विंध्या rocks के south में present है southern peninsula जो है इसी. and we also know southern peninsula as the Deccan Plateau, ठीक है. ये नाम आपको याद रखना है कि southern peninsula को हम Deccan Plateau के नाम से भी जानते हैं, and it is composed of volcanic rocks, ठीक है. volcanic rocks की वजह से इसका composition हुआ है, या फिर volcanic rock से ये बना है. and अब डेक्कन प्लेट्यू हम देखें, डेक्कन प्लेट्यू की हम बात करें तो ये दो मेनली घाट्स से बनता है. फर्स्ट वन इज द वेस्टर्न घाट एंड द सेकंड वन इज द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है. अब वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स की हम बात कर रहे हैं. आई विल शो यू द लोकेशन इन द मैप ऑफ इंडिया. वेट अ सेकंड. सी दीज आर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है. ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, एंड ये वाले जो हैं ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है. So Deccan Plateau comprises of these two also, and more if we see about Deccan Plateau, तो देखो जो ईस्टर्न घाट से लेकर, मतलब बे ऑफ बंगाल से लेकर के ईस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है, उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है. कोरोमंडल कोस्ट जो है इट स्टैंड्स फॉर ईस्टर्न घाट्स एंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल. मतलब we'll see this in map also. See, बे ऑफ बंगाल यहाँ कहीं है, एंड दिस वन को इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है. यू नीड टू रिमेंबर दैट पॉइंट वेरी नाइसली, या फिर बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना. अब वैसे ही हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स रन अलॉन्ग द अरेबियन सी, एंड अ लैंड बिटवीन दीज इज नोन एज कोंकण अप टू गोवा, ठीक है. देखो विल शो यू ना मैप. यहाँ से लेकर के इधर ये गोवा तक का जो रीजन है ना, इसे कोंकण अब बोलते हैं. फिर इसके नीचे वाला रीजन जो है इट इज़ नोन एज कनारा, ठीक है. कनारा याद रख लेना, एंड कोंकण अब याद रख लेना. उसके अलावा यू नीड टू रिमेंबर कोरोमंडल कोस्ट ऑल्सो, ठीक है. सो we are talking about the southern peninsula. I hope everything is clear. If you have any doubt you can contact me or you can comment, है ना. तो I'll explain you then.
Then if we talk about the passes which are located in the Western Ghats, so there are few passes such as Junnar, then Kanheri, then Karle, जो एक लिंक के तौर पर साबित हुए या फिर ट्रेड रूट के तौर पर साबित हुए, है ना. एंड इफ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न पोर्ट्स, तो ये जो ट्रेड रूट्स है दे सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन the ports and between the invaders as well as between India, ठीक है. And the most important trade route which the Indo-Romans used for the trade, if we talk, is the Palghat Pass, ठीक है. Palghat Pass जो है, it served as a most important trade route between for the Indo-Roman trade, ठीक है. You need to tell me where is Palghat located. Just you need to comment it कि कहाँ है पालघाट पास, ठीक है. And I'll see that if you are correct or not. Then throughout history जो region है between the Krishna and Tungabhadra, जिसे हम रायचूर दाव के नाम से जानते हैं, ये एक sort of bone of contention के तौर पे साबित हुआ. Various kingdoms wanted to establish their supremacy over this particular region, ठीक है. तो if we talk about the history या फिर कृष्णा रायचूर दोआब की हम बात करते हैं हिस्ट्री के बेसिस पे, so you can write in his answer that it remained या फिर it was a bone of contention for between various kingdoms of the south, ठीक है. साउथ के जो बहुत सारे किंगडम्स हैं उनके लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन की तरह इसने एक्ट किया है. फिर उसके अलावा इफ वी टॉक मोर अबाउट द सदर्न पेनिनसुला, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स एंड टाउन्स जो हैं दे फ्लरिश्ड ओवर दिस रीजन ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा. हम जब क्रिश्चियन एरा की बात करते हैं, बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा की बात करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स एंड टाउन्स जो थे दे एस्टैब्लिश्ड ओवर दिस रीजन. देन जो कावेरी डेल्टा है हमारा, इट सर्व्ड एज अ सीट ऑफ द चोला पार जो थी उसकी सीट के तौर पे था कावेरी डेल्टा, मतलब वहाँ पे उनका किंगडम एस्टैब्लिश था, ठीक है. एंड मोर अबाउट दिस इज देन कावेरी बेसिन जो है इट हैज़ अ वेरी रिच ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड ये एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है. एंड सी during this era or due to these geographical features, you can say that commercial contacts they established between the Greco-Roman as well as South India, ठीक है. एंड उनका कल्चर जो है वो हमारे साथ मिक्स हुआ, हमारा कल्चर उनने अडॉप्ट किया. सो ऐसे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी. And the next topic here is the India, a land of unity in diversity. So it has a very deep meaning, na? As we saw that various kingdoms जो थे they got established over this region only, so they mixed with us, है ना. वो हमारे साथ मिक्स हुए, हम उनके साथ मिक्स हुए, उनका कल्चर हमने अडॉप्ट किया, हमारा कल्चर उनने अडॉप्ट किया. सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी. सी the pre-Aryans, then Indo-Aryans, then Greeks, Scythians and Huns, etc., Turk, etc. They made the India as their home, है ना. उन लोगों ने अपना घर बना लिया इंडिया को. फिर उसके बाद फिर ये सारे एथनिक ग्रुप जो थे दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इनटू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कल्चर, ठीक है. अब इन लोग का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने मिलता है इंडियन कल्चर में. अब वो कैसे, देखो मैंने बताया आपको, ये लोग ने सारे उन्हें अपना घर बना लिया इंडिया को, है ना. अब घर बना लिया इंडिया को, सो इनका कल्चर इन लोगों ने प्रॉस्परस किया एज वेल एज इनने हमारा सॉमवॉट कल्चर अडॉप्ट किया. तो ये सारे कल्चर्स जो थे वो मिलकर बन गए इंडियन कल्चर, या फिर कह सकते हैं इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है. अब different cultural mingled with one another through the ages, such as pre-Aryans or Dravidian terms occur in Vedic text. Similarly, many Pali and Sanskrit terms appear in Sangam literature. अब संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें या फिर वैदिक टेक्स्ट की बात करें, तो हमें वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलता है अबाउट द प्री आर्यंस एज वेल एज द्राविडियन टर्म्स के बारे में. फिर संगम में हमें पाली एंड संस्कृत टर्म्स के बारे में देखने को मिलता है. तो इस तरह से वेरियस कल्चर्स जो थे या वेरियस ट्रेडिशंस थे, दे मिंगल्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म द इंडियन कल्चर, ठीक है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको. वैसे ही हम देखते हैं, विटनेस करते हैं दी बर्थ ऑफ हिंदूज़म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. अब ये सारे रिलीजन भी इंडिया में ओरिजिनेट हुए. इनका समवॉट डिफरेंट कल्चर था, बट इट वाज समवॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन कल्चर ओनली, है ना.
and they also mingled with us, या फिर we can say all the religions intermingled with one another, and इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो थी वो अराइज हुई। ऑल दो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद वी स्टैंड एज यूनाइटेड एज अ सिंगल नेशन, ठीक है। जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे ट्रैवल होता है, वी आर देयर टू हेल्प देम आउट, ठीक है। So this is what unity is about. The ancients strove for unity, ठीक है। Then they look up the vast continent as one land। अब ancient के टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो जो एंशियंट टाइम्स हैं उस टाइम में भी यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। जो एंशियंट पीपल थे, या फिर वी कैन से राइटर्स, पोएट्स और philosophers जो थे, they also termed India as a single landmass, and apart from so much of diversity, they all termed India as a single landmass, या फिर one land, and all people are there equal for them, ठीक है। वैसे ही हमारे कंट्री का नाम रखा जाता है भारत या फिर भारतवर्ष, जो कि पूरी कंट्री को सिंबलाइज करता है। ये एक ट्राइब थी भारतास, उनके बेसिस पे रखा गया है भारतवर्ष, या फिर लैंड ऑफ भारता, या फिर भारत, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं कि एक ही का सिंबलाइज किया गया है। फिर उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट द यूनिटी ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड बाय द फॉरेनर्स, दे ऑल्सो टर्म इंडिया एज सिंगल लैंड मास, सच एज यू कैन सी जो सिंधु नदी थी या फिर इंडस नदी थी, उसके बेसिस पे इंडिया नाम रखा गया, या फिर सिंधव प्रदेश वी कैन से, ठीक है। एंड जो इन्वेडर्स थे या फॉरेनर्स थे, वो फर्स्ट टाइम जो थे कांटेक्ट में आए सिंधु रिवर के या इंडस रिवर के, एंड उसकी वजह से उन्होंने पूरी कंट्री जो है उसको एक पर्टिकुलर रिवर के बेसिस पे नाम दे दिया। वैसे ही अगर हम संस्कृत में सिंधु का मीनिंग देखें या फिर इंडिया का देखें, तो देखो सिंधु जो वर्ड है वो एग्जैक्टली संस्कृत वर्ड है, ठीक है। एंड उसी को हमने ग्रीक में कर दिया इंडिया, एंड हिंद कर दिया पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज में। तो ऐसे हम देखते हैं हमारा जो कंट्री है वो एक मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी के तौर पर इमर्ज हुई। इंडिया जो है वो ऐसे इमर्ज हुआ। दिस वाज अबाउट द फर्स्ट लेसन of the Tamil Nadu boards, which was India, its geographical features and their impact on the history. These are few questions of Tamil Nadu boards. I would suggest to solve them, and let me know on my Telegram channel if you have done all these questions. This is my Telegram channel, which is known as Khyati Jain MPPSC, and if you would show these questions to me on that Telegram channel, I would love them. And you can also comment here, आप अपने आंसर्स कमेंट करके भी बता सकते हो। एंड प्लीज डू लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट प्लीज, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज हैव अ नाइस डे एंड enjoy your day, and please do study. Take care, bye.